اس کا 3 باب 16 تا 18 آیات۔ ایک دن یسوع نے نیکودیمس سے کہا، خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لایا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح چے میرے بہنوں، بھراوو، بزرگوں، پیارے بچوں، اج پاک ماں کلیسیا پاک تسلیس اقدس سالوس ہولی ٹرینٹی دی عید مناندی۔ اسی ایک خدا تے ایمان رکھنے ہاں اور اندے چے 3 شخصیات نے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ اگر پچھلے 6 مہینہ دا اسی جائزہ لائیے تے کرسمس تے اسی یسوع دی پیدائش دا دن منایا، پھر عام دن آئے، اس تو بعد روزیاں دا سیزن شروع ہویا۔ روزیاں چ اسی یسوع دی اذیت تے موت چ شامل ہو کے ان دے جی اٹھن دیاں خوشیاں منایا اور ان دے نال ہی عید پاشکا دا وقت شروع ہو جاندا ہے۔ اور 40 دن تو بعد یسوع آسمان تے جاندا ہے اور آسمان تے جان تو پہلاں وعدہ کردا ہے، میں تیاڈے کول مددگار بھیجاں گا جڑا تیاڈی مدد تے رہنمائی کرے گا اور جڑا تمام بھیداں دیاں گلاں تیاڈے تے آشکارا کرے گا، اور تسی خدا دے الہی بھیداں نو جانو گی کیونکہ پاک روح تیاڈے نال ہوئے گا۔ اور پچھلی اتوار اسی عید نزول، پاک روح دا نزول دی عید منائی، پاک روح دیاں نعمتاں تے پھل حاصل کیتا ہے۔ اور ہن اے پاک روح دا دور ہے کہ جدوں پاک روح ساڈے تے گہرے بھیداں نو جڑا یہ منکشف کرتا ہے کہ اسی گہرے بھیداں نو جانیے اور گہرے بھیداں نو جان کے انہاں تے ایمان رکھ سکیے۔ آج پاک تسلیس ایک بہت گہرا بھید ہے، بے شک یہ بہت مشکل بھی ہے کہ ایسے کس طرح سمجھے۔ دنیا چ 3 بڑے مذاہب نے جڑے ایک خدا، واحد خدا تے ایمان رکھتے ہیں۔ سب تو پہلا یہودی لوگ واحد خدا تے ایمان رکھتے ہیں، پھر مسیحی لوگ ایک خدا تے ایمان رکھ دینی اور اس خدا ایک خدا چی کثرت باپ اور بیٹی اور روح القدس نوں دیکھ دے، اور پھر مسلم ایک خدا تے ایمان رکھن والے لوگ۔ اس واسطے آج اسی پاک تسلیس دے گہرے بھیداں تے غور و خوض کریں گے کہ کیویں اسی ایک خدا چے 3 شخصیات نوں دیکھنے ہیں۔ اور مسیح چ میرے عزیزو، سب تو پہلا اشعیا ان دا 55 باب ان دے 8 تا 9 آیت چ لکھا ہے، خداوند خدا کی فرماندا ہے کہ میرے خیالات اور میریاں راواں تیرے خیالات اور تیریاں راواں وگریاں نہیں۔ میرے خیالات اور میریاں راواں انیاں ہی بلند نے جویں آسمان تے زمین دے وچ فاصلہ ہے۔ زمین تو جنہ آسمان بلندی، خدا دیاں سوچاں ان دیاں راواں بھی انیاں ہی بلند۔ اس واسطے خدا جنی سانو حکمت دنائی اور قوت دیندا ہے، اسی خدا نو اونا ہی سمجھ سکنے، اس تو ود کے نہیں۔ اگر اسی کہیے کہ خدا دی خدائی نو اسی اپنی چھوٹی یہ کھوپڑی چ قید کر لیے تے ہو نہیں سکتا۔ سانو اج شکر گزار ہونا ہے کہ خدا ساڈے تے جنہ بھی رحم کردا ہے، برکت دیندا ہے، حکمت دنائی دیندا ہے، اسی ان دے گہرے بھیداں نو اونجے جان سکے۔ اور اج پاک روح دی معموری چاہیے تاکہ جویں یسوع نے کہا سی پاک روح یہ گہرے بھیداں نو تیاڈے اُتے آشکارا کرے گا اور تسی انہوں چنگی طرح سمجھ سکو گے۔ مسیح چ میرے عزیزو، اسی پاک تسلیس نو اونا کوئی جان سکنے سمجھ سکنے ہیں جنہ خدا سانو برکت دیندا ہے۔ اور اس واسطے خدا دے کلام چ لکھا ہے، سن اے اسرائیل، میں خداوند تمہارا خدا، ایک ہی خدا ماں، ایک ہی خدا ماں۔ اس واسطے اسی خداوند دی ڈویژن نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسی پاک کلام دے وچ اگر اسی دیکھنے ہیں کہ سانو پاک تسلیس دی بنیاد کتھے کتھے نظر آندی،
सब तो पहला असी द फाउंडेशन ऑफ है होली ट्रिनिटी इन द स्क्रिप्चर है। चर्च डॉक्ट्रिन सानू की सिखांदा है कि चर्च की तालीम के मुताबिक ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਮੁਤਰਕ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਮੁਤਰਕ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਆਸਮਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਲ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਸਮਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਕਰਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਦੀ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ, खुदा बेटा बपतिस्मा पा रहा है और खुदा रूल कदूस कबूतर की सूरत च उतर के ठहर जाता है। इस वास्ते बपतिस्मे के मौका ते असी पाक तसलीस नूं देखने कि किवें बाप बेटा रूल कदूस कट्ठे मुतरक ने। फिर जदों यसू ने अपने शागिर्दां नूं तालीम देण वास्ते भेजा, जाओ जाके तमाम कौमां नूं खुशखबरी की मुनादी दवो और की करो, तमाम कौमां नूं बाप और बेटे और रूल कदूस के नाम में बपतिस्मा दो। साढ़े बपतिस्मियां दे वेले भी पाक तसलीस मुतरक, असी सिर्फ ये नहीं कि बाप के नाँ से बपतिस्मा लेने या बेटे के नाँ से लेने या रूल कदूस के नाँ से, जदों भी साडा बपतिस्मा हुंदा ही पाक तसलीस की बरकत साढ़े उत्ते नाज़िल हुंदियां। इस वास्ते कि खुदाबंद यसू मसीह ने बाप और बेटे और रूल कदूस के नाँ से ये हुक्म दिता कि इस अंदाज से बपतिस्मा दो। और जदों असी बपतिस्मा पाने मसीही हुने, खुदा दा जलाल देखने, शुक्रगुजारी कर, हर एक मजहब दे विच एक अपना अंदाज है अपने लोगों नूं अपने मजहब च दाखिल करन दा। हुण हिंदू या सिख ने वो गुरुद्वारियां च जांदे ने जी मत्था टेकना है, मत्था टेकना है और कि अपने मजहब के मुताबिक अपने लोगों नूं हिंदू या सिख बनाते। मुसलमान ने बच्चा पैदा होंदे उनके कंन च अजान देंदे ने, लो जी ये मुसलमान हो गया। हुण साडे मसीही लोग जदों अपने बच्चों के बपतिस्मे करवाते हैं उदों वो मसीही होंदे और जिहड़े बच्चों के बपतिस्मिਆਂ के खिलाफ होंदे गल्लां करदे ते जदों नादरा वाले या स्कूलों वाले पुछदे ने ना मजहब के खाने च की लिखना है तो फौरन लिखदे मसीही। वो जब तक बपतिस्मा नहीं लिता मसीही किवें होवोगे? है बच्चों के बपतिस्मे तो खिच खांदे हो तो फिर है जो मजहब के खाने च लिखाना है फौरन मसीही उदों कि जदों असी उनके नाँ से बपतिस्मा लेने पाक तसलीस के नाँ से। इस वास्ते मसीह च मेरे जीजो साढ़े बपतिस्मियां के वेले भी खुदा बाप का रहम ते फजल, खुदा बेटे की जड़ी मुहब्बत और खुदा रूल कदूस की कुवत ताकत ते मामूरी सानू बरकत देंदी, साढ़े बच्चों नूं बरकत। असी इस वास्ते हालेलुया कि नहीं खुदा दा जलाल देखने और खुदा की कुर्बत ते मुहब्बत का तजर्बा कर। फिर तीसरी जगह पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया के नाम जदों बरकत कलमात इस्तेमाल करता है तो सिर्फ बाप का नाम नहीं लेंदा या बेटे का नहीं लेंदा या रूल कदूस का, कहता है खुदा बाप और बेटे रूल कदूस की बरकत तेरे ते नाज़िल तो साड़ी इबादत का शुरू भी पाक तसलीस तो होंदा है और इख्तिताम भी पाक तसलीस तो। जदों खुदा का काहिन आंदा है तो की कहता है खुदा बाप की मुहब्बत, खुदा बेटे की शराकत, रूल कदूस की शराकत ये सारे तेरे ते नाज़िल हो, बाप और बेटे और कदूस की शराकत बरकत तेरे से नाज़िल हो। और जदों इख्तिताम ही करना है कादरे मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत आप पे नाल। साड़ी इबादत का शुरू तो इख्तिताम भी पाक तसलीस के नाल हुंदा है। और फिर चौथी बुनियाद जिहड़ी है वो तकवीन की किताब च जदों खुदा ने कायनात नूं बना दिता और जदों इंसान की वारी आई तो फिर लफ्ज़ ऐ नहीं इस्तेमाल होया है कि मैं बना रहा, खुदावंद खुदा ने की किया लफ्ज़ इस्तेमाल है आपस हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए। हम दा सीगा हम दा लफ्ज़ इस्तेमाल होया, हम तो की मुराद है बाप और बेटा और कदूस कि इंसान नूं जदों खुदा बना रहा सी ते पाक तसलीस की बरकत और पाक तसलीस की अकीदत ते मुहब्बत इंसान च नजर आ। और इंसान भी सह जुज़ जड़ा है परसनैलिटी, देखो जान भी है, रूह भी है और जिसम भी। जदों इंसान की रूह निकलती है
तो जान जुदा हो जाती है और जिसम जिहड़ा है वो मिट्टी 'च चला जाता, रूह जिधरों आई उधर चली जाती। और इस तरह असी ये 4 बुनियादा, होर भी बहुत सारिया गल्लां ने लेकिन लैक्चर लंबा हो जाएगा। मैं बेसिक जड़ियाँ चीज़ां ने कि पाक तसलीस का वजूद सानू पाक कलाम च कित्थों कित्थों नज़र आता है और किवें वो मुतरक हो के साड़ी मदद ते रहनुमाई कर दे कि असी खुदा दे इस गहरे भेद नू, एक खुदा च 3 शख्सियात नू देख सकीए। हुण असी देखने कि मुख्तलिफ खुदा दे बंदे, मुफक्कर और राइटर मुख्तलिफ अंदाज से पाक तसलीस नू समझाने की कोशिश करते, क्योंकि इनू समझना एडा आसान काम नहीं, समझना एडा आसान काम नहीं। असी भी ना गोलमोल हो जाने हैं जो क्रिसमस होंदा यसू यसू पाकरू का है, पाकरू ना मोरो जे है, खुदा बाप की गल हो तो बाप बास का इंसान अपने तौर पर यार करिए तो करिए कि है बहुत दफ़ा, लेकिन इस वास्ते परेशान होने की जरूरत नहीं। हुण मैं तुहानू चंद दुनियावी मिसालों के नाल पाक तसलीस की मदद करांगा कि किवें समझ सकते। एक खुदा का बंदा मुकद्दस पैट्रिक कहता है कि सह वर्गा पौधा, उनका पत्ता लवो ना, उस पत्ते नू अगर देखो पत्ता इको ही है लेकिन उनदे च 3 पत्ते नज़र आएंगे और उनदे च समझाना चाहता है। ये बिल्कुल पाक तसलीस की मिसाल है कि खुदा एक ही है लेकिन उनदे च 3 शख्स ने, बाप के रूप च, बेटे दे और रूह कुदस के रूप च। और फिर एक पानी की मिसाल है, पानी नू असी 3 हालतां च देखने है, माया, ठोस है और भाप। माया, ठोस और भाप हुण एक ही है। पानी पानी लिक्विड जिहड़ा असी पानी पीने हैं ये माया की सूरत है। फॉर एग्जाम्पल ये पानी ये माया की सूरत है, लिक्विड है, ठीक है। ये हुई पानी नू अगर असी उनका फ्रिज च रख दईए तो की बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी, ठीक है, ये ठोस हो जाएगा। और अगर ये हुई पानी नू असी चूल्हे पर रख दईए तो भाप बन के उड़ जाएगी। है तो हकीकत च पानी है लेकिन इन्होंने 3 रूप च देखने, एक माया के रूप च, एक ठोस के रूप च और एक भाप के रूप च। और इस वास्ते यानी कि पानी नू पाक तसलीस दे नाल समझाने की कोशिश कि खुदा एक है, उनदे च 3 शख्सियत ने, बाप का रूप है, बेटे का रूप है और पाक रूह का रूप। ये ना किसी तो वध और ना घट ने। अगर असीं कहिए इन्हां दी कुवत घट है, इन्हां दा जौहर घट है और इन्हां दी पहचान घट, सारे इको ही ने, इको जिहा जौहर, इको जी ताकत, इको जी कुवत रखते हैं। इस वास्ते असी एक खुदा च 3 शख्सियात नू देखने। और फिर एक मिसाल कारोबार दी है, कारोबार दी जिवें शाहद है एंड कंपनी। हुण शाहद है, उनके 3 पुत्र ने, ठीक है। हुण कंपनी इको ही है, अदारा इको ही है लेकिन ना शाहद एंड कंपनी, शाहद एंड कंपनी। और फिर एक मिसाल है इंसान दे, इंसान दे एक बंदा है वो अपने बच्चों का बाप है, अपने बच्चों का बाप है, अपनी बीवी का खावन है और अगर उस्ताद है तो अपने बच्चों का उस्ताद है, टीचर है, ठीक है ना। बंदा वही है, अगर अपने बच्चों के कोल जाएगा बाप बन जाएगा, बीवी कोल जाएगा बंदा बन जाएगा और अपने स्टूडेंट्स कोल जाएगा तो वही बंदा जोड़ा उस्ताद बन जाएगा। सो इस वास्ते खुदा एक उनके 3 शख्सियत, ये दुनियावी मिसाल ने, लेकिन भावें ये मिसाल सानू समझण च मदद ना भी दें तो फिर भी असी इनके इनकारी नहीं हो सकते। पाक तसलीस से खुदा का शुक्र अदा करना है कि खुदा जिन्ना भी सानू हिकमत दनाई इलम देंदा है, असी ये खुदा की बरकत का तजर्बा करें। हुण पाक तसलीस यगानगत च किवें काम कर, देखो अज का टॉपिक जिहड़ा ना ट्रिनिटेरियन मॉडल ऑफ लव एंड यूनिटी। ट्रिनिटेरियन की पाक तसलीस जिहड़ा एक मॉडल है मुहब्बत और यगानगत का, कट्ठ का है, यूनिटी का। हुण सानू ये पाक तसलीस मुहब्बत ते इत्तेहाद का पैगाम देंदी। हुण इत्तेहाद च किवें काम करदे, ये जरा गौर करना कि मैं इस वास्ते कहा सी कि परेशान नहीं होना कि बाप बेटा रूह कुदस किवें करांगे। फिर मैं तुहानू भी सवालात करांगा, फिर तुहाडे कोलों पुछांगा तुसीं की समझदे हो। चलो सब तो पहला यगानगत च किवें काम, तखलीक दे वेले जदों कायनात की तखलीक का वक्त सी उदों पाक तसलीस किवें मौजूद सी। खुदावंद खुदा ने कलमा किया, कलाम किया, हो जा और हो गया। यही है ना, चंद तारे, समंदर, पानी, समंदर के अंदर दे है तमाम चीज़ां, कायनात की हर चीज़, कहा और हो गया। कलमा किया है, कलाम किया, उन्हें क्या हो जा तो हो गया। खुदा बाप, उन खुदा बेटे के बारे पाक कलाम च की साड़ी मदद मिलती है। यूहन्ना
अंजील नवीस पहले बाब पहली आयतां च की लिखता है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम और सब चीज़ें देख लो कि कलाम इब्तदा च कलाम सी, कलाम खुदा दे नाल सी और कलाम खुदा सी। और देखो बेटे दी हजूरी, खुदा ने कलाम किया, बेटा उस जगह पे मौजूद। और फिर पाक रूह के बारे की लिखा है, और खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता था। पाक तसलीस तखलीक दे वेले भी पाक तसलीस मौजूद है कि किवें तखलीक दे वेले यगानगत। और फिर मैं जिवें पहले भी किया, इंसान नूं बनाने वास्ते जदों पाक तसलीस है, बाप बेटा रूह कदूस, बस आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए। ये पाक तसलीस का काम कट से फिर असी मुतजस्सम होने दे भेद च देख रहे, द मिस्ट्री ऑफ इनकारनेशन, द मिस्ट्री ऑफ इनकारनेशन, मुतजस्सम होन, खुदावंद यसू मसीह दे मुतजस्सम होन, पैदा होने दे भेद च कि ये खुदा बाप अपना बेटा दुनिया च पे। आज निकोदिमस की कहता है, खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा। खुदा ने बेटा भेजिया है मुतजस्सम होने दे भेद च। खुदा दा बेटा इस दुनिया ते आया है और खुदा बेटा चरनी च पिया है। और किंदे वसीले नाल पैदा होया है? रूह कदूस की मदद दे नाल। सो मुतजस्सम होंदे ना बाप बेटे नूं भेजदा, बेटा पैदा हुंदा और पाक रूह दे वसीले नाल मुकस्सा मरियम हामला हुंदी। उनदे मुतजस्सम होंदे भेद च भी पाक तखलीक च, इंसान दी पैदाइश च, इंसान नूं बनान च। और फिर असी देखने कि अज यसू दे पैदा होने च, मुतजस्सम होने च भी पाक तसलीस। हुण सलीब वाल देखिए, सलीब वाल कुर्बानी नज़र आ रही है ना, यसू दी अजीम कुर्बानी। हुण कुर्बानी कबूल कौन करता है? खुदा बाप। यसू कुर्बानी किनू दे रहा है? खुदा बाप दे नाल है, वो बाप दे अगे अपनी कुर्बानी पेश कर रहा है और बाप कुर्बानी नू कबूल कर रहा है और बेटा अपने आप नू कुर्बान कर रहा है। और किंदी है वसीले दे नाल, किंदी मदद दे नाल कुर्बान हो रहा है? पाक रूह दे नाल। यसू ने गसमनी बाग च कहा है, बदन कमजोर है, जिसम कमजोर है, लेकिन रूह तैयार है। सो वो यसू दी अजीम कुर्बानी दे विच भी पाक तसलीस सानू नजर आंदा कि किवें कट च यगानगत च, इत्तेहाद च, यूनिटी च काम करदे ने। और फिर असी आइए नजात वाल। हुण नजात दे कमां च पाक तसलीस साडी किवें मदद करदा है? खुदा बाप की करदा है? मुसरफ बेटी की मिसाल याद है? बाप की करदा है? बेटा जिहड़ा खो गया सी, जिहड़ा मर गया सी, वो जिंदा हो गया है, वो वापस आ गया है। तो की करदा है? हाथ फैला के गले मिलदा है, गले मिल के है हाथ च अंगूठी, पोशाक नवी, पलिया होया जब बछड़ा, और की जियाफत करो, खुश हो, वो खुशी करो, मेरा पुत्र खो गया सी, लभ गया, मर गया सी, जिंदा हो गया। बाप जिहड़ा है अपने बच्चों नूं कबूल करदा है। नजात दा वेला ये नजात दी मैं गल कर रहा। और उनके बाद बेटा की करदा है? बेटा अच्छा चरवाहा है, खोई हुई भेड़ के पिछे जाता है, 99 जदों लभ जाती मोडियां ते रख के खुश हुंदा है। बेटा दुनिया च क्यों आया? बीमारां दुखियां परेशानियां नूं है उन्हां दे बोझ कट कर इस वास्ते। और नजात दे काम दे विच पाक रूह की करदा है? पाक रूह मोर करदा है, जिहड़े खुदावंद दे काबल हुंदे मोर कर दिंदा है। इस वास्ते मसीह च मेरे अजीजो पाक तसलीस नजात दे विच की हुंदा है कि बाप जिहड़ा है वो इंसान दे गुनाहां नूं मुआफ करदा है, बेटा जिहड़ा है खोए होयां नूं लभ के लिआंदा है, और पाक रूह मोर करदा है कि नजात याफ्ता ने, ये बरगजीदा ने, ये खुदावंद दे लायक ने। ए खुदा दी मुबारक लोगो, आओ इस बादशाह च शामिल होवो जिहड़ी बनाई आलम तो तुहाडे वास्ते तैयार कीती। ये पाक तसलीस दी बरकत है कि जिहड़े इस काबल होणगे उस जिंदगी पाणगे। मसीह च मेरे अजीजों देखो, गॉड फादर की करता है? गॉड फादर क्रिएटेड द वर्ड है, गॉड सन रिडीम द वर्ड एंड गॉड होली स्पिरिट सैंक्टिफाइड द वर्ड। कि गॉड फादर की कि उन्हें तख्लीक किया है और खुदा बेटे ने की किया है? खुदा बेटे ने नजात दी, रिडीमर नजात दहिंदा है, उन्होंने नजात है। बाप ने तख्लीक किया है, बेटे ने नजात दवाई है, और पाक रूह सैंक्टिफाई करदा है, पाक करदा है कि सानू साड़ियाँ गलतियां खतावां तो पाक। क्यों असीं कहने पाक रूह साडे दिलां च आ?
ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਦੇ, ਕੁੰਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਜਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੂਵਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਸਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮਾਨ ਰੱਖਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਕੋਲੋਂ? ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਯਸੂ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ। ਲੈ ਹੁਣ ਨਾ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿੱਧਰ? ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਐ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਈਏ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਕੋਲੋਂ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਮੀਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ? ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਔਰ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਦਾ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਲ ਤੱਕ ਉਤਰੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਧਿਆਨੂ ਗਿਆਨ, ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਦੁਆ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੀ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਔਰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਯਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਵੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਲੱਭ ਰੱਬਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ, ਆਸਮਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਟਰੱਕ ਹੀ ਭਰ ਦੇ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਸੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਸੀਲਾ ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੈ ਪਾਕ ਤੇ ਸਲੀਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ, ਵਸੀਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਨੇ? ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਦਦ। ਅਗਰ ਰੂਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ? ਇਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਕ ਤੇ ਸਲੀਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਰਤਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਵਸੀਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਸੀਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵਸੀਲਾ ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਦੁਆ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ, ਵਸੀਲਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰੱਖਣੇ। ਦੇਖੋ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਤੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਸ਼ਫਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਫਾਇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਖੁਦਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ
है शख्सियत नूं, भावें औरत है या मर्द है, ये मुकाम, ये रुतबा और ये अरूज नहीं मिलिया जिहड़ा मुकस्सा मरियम नूं पाक तसलीस दे नाल है उनसे यगानगत है, कट है, एक रिश्ता है, इवें जो एक खानदान है, जिवें साडे धीआं पुत्तर सानूं फखर है, आ मेरा पुत्तर है, मेरी धी है, मेरे घर च भैन भरा है, अपने अपने खानदान नूं देखो तो फखर नहीं हुंदा भाई मेरा खानदान है, बीवी नूं बंदे ते बंदे नूं बुढ़ी ते है, मियाँ बीवी नूं बच्चियां ते बच्चियां नूं है, माँ प्यो ते फखर हुंदा ते फिर मुकस्सा मरियम जिहड़ी खुदा बेटे दी माँ है, खुदा बेटे दी माँ है और खुदा बाप दी बेटी है और खुदा रूल कुदस दी दुल्हन, उन्होंने अपने इस पाक तसलीस के रिश्ते नाते ते फखर नहीं होएगा। सो सानू तो खुश होना चाहिए कि मुकस्सा मरियम सानू पाक तसलीस के नाल है एक होना सिखाती, दुआ करना सिखाती, रहना सिखाती कि किवें पाक तसलीस के नाल मुहब्बत च अगे बढ़ सकते। मसीह च मेरे अजीजो, हुण एक पॉइंट जिहड़ा सलीब का पॉइंट है और जिहड़े अकल दे अन्ने सलीब का निशान नहीं ना बनाते हैं वो भी सुन लैन जरा है, वो भी सुन लैन जिहड़े सलीब का निशान बनाने तो डरते हैं। सलीब जदों भी असी सलीब का निशान बनाने असी पाक तसलीस की बरकत अपने आप से चाहने। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन, यो ही कहने ना। तो इहदे च की हर्ज है कि असी यानी कि बाप नूं नहीं याद कर रहे, बेटे नूं नहीं कर रहे या पाक रूह नूं नहीं कर रहे, असी ते पाक तसलीस नूं अपने बदन दे उत्ते है उनकी बरकत चाह रहे। जदों भी असी पाक सलीब का निशान बनाने असी पाक तसलीस की बरकत चाहते। घरां दे विच भी देखो जदों बजुर्ग माँ प्यो दादा दादी नाना नानी की करदे, अक्सर जदों भी प्यार, मेरी माँ भी करदी हुंदी सी, जदों भी सिर झुका के प्यार लेना है सलीब का निशान बनाना है। और मैं बड़ा हैरान माँ सलीब का निशान बना दी, लेकिन फिर आस्ता आस्ता कि नहीं वो खुदा बाप दा फजल ते बरकत चाहती सी, खुदा बेटे की मुहब्बत अपने पुत्र ते और खुदा रूल कुदस की कुवत कि इनकी मदद ते रहनुमाई करे। सो इस तरह सारे माँ प्यो जदों अपने बच्चों के मत्थे ते सलीब का निशान बनाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ है असी से लकड़ी लकड़ी जी इंज हो गया तो हो गया, लकड़ी के पिछे बहुत बड़ा भावें ये सलीब लानती निशान सी लेकिन साढ़े वास्ते निजात ते जिंदगी का निशान। इस वास्ते जदों भी बजुर्ग माँ प्यो भैन भरा सलीब का निशान बनान तो ये मत समझो कि बाजू वो सलीब बना, सलीब के पिछे बाप है, बेटा है, रूह कुदस पाक तसलीस की बरकत साढ़े उत्ते नाज़िल हुंदी पई। इस वास्ते असी दिहाड़ी 20 वारी भी सलीब का निशान 20 वारी पाक तसलीस नूं याद करने। सो पाक तसलीस हर लम्हा हर पल साढ़े नाल नाल। मसीह च मेरे अजीजो, कदी भी असी पाक तसलीस तो इनकारी ना होई। अगर असी इनू अकल दे नाल समझना चाहांगे तो अपने दिमागा तो जावांगे हैं। अगर असी जे कि इफ आई अंडरस्टैंड टोटली द रियलिटी द होली ट्रिनिटी दी रियलिटी नू असी समझ जाइए तो असी वी विल बिकम द मेंटल केस, असी की पागल हो जावांगे, अपने दिमाग तो जावांगे। सो अगर असी इनका इनकार करिए तो फिर अपन रूहां नू खोलांगे। इफ वी डिनाई द होली ट्रिनिटी ऑन द तमाम डॉक्ट्रिन दैन वी लॉस्ट आवर सोल। अगर असी अपने है इनू अकल नाल समझना चाहांगे तो दिमाग तो जावांगे और अगर इनका इनकार करांगे तो अपनी रूह तो जावांगे। सो इस वास्ते शुक्रगुजार होइए कि खुदा जिन्ना इलम जिन्नी हिकमत दिनाई सानू पाक तसलीस के बारे देंदा है उन्हें वास्ते शुक्रगुजारी, इनका इनकार ना करिए, ईमान रखिए। असी देखो जो रसूलों का किताब भी पढ़ने इंग्लिश कहने आई बिलीव इन वन गॉड, आई बिलीव इन वन गॉड कि असी एक खुदा ते ईमान रखने तो फिर अगे सारा अकीदा से पढ़ते रहने और उनके 3 शख्सियात। और इस वास्ते मसीह च मेरे अजीजो अज ये यानी कि ट्रिनिटी होली ट्रिनिटी या पाक तसलीस सानू की सबक सिखाना चाहती। पाक तसलीस मुहब्बत के नाल रहिंदी है और पाक तसलीस यूनिटी च हुंदी, कट च इतिहाद च। और अज पाक तसलीस सानू भी मुहब्बत का सबक दे। यसू ने की किया सी, मैं बाप दे जिस तरह बाप ने मनु प्यार किया उंज मैं त्यानू प्यार कर और त्यानू हुक्म देना तुसी भी एक दूसरे को प्यार करो। हुण पाक रूह की मुहब्बत की है कि यसू बाप अपना रूह भेजता है, बेटा रूह भेजता है और पाक रूह की मुहब्बत वो साढ़े दरमियान आके साड़ी मदद ते रहनुमाई कर।
ये अज झगड़ियां ने इन्हां नूं कढीए। जिवें पाक ते सलीस मुहब्बत च काम करदी है, असीं भी खानदानी जिंदगी नूं विच मुहब्बत नूं लैके आईए, मुहब्बत नूं परवान चढ़ाई और फिर पाक ते सलीस कट्ठ विच इत्तेहाद च काम करदी। मैं तुहानूं वंड करके दस्सिया हर चीज़ किथे किथे देखो कट्ठे होके काम करदे। सो सानूं भी खानदान नूं कट्ठा करना है। अगर पाक ते सलीस की बरकत पानी है तो खानदानों नूं कट्ठा करने वाले, तोड़न वाले ना बनी। जिथे जाओ जाते तीली ला दो, अग ला दो, टूट गया चलो जी है इहो ही नहीं। मैं तुहानूं पहले भी एक बारी मिसाल दी सी सूई दी ते छुरी दी, याद है या नहीं? याद है या नहीं? फिर भुल गए। अच्छा, छुरी भी तिखी हुंदी है ते सूई भी तिखी, नाइफ एंड नीडल है। जिन्होंने पंजाबी नहीं मैनू दस दिया करो, मैं विच इंग्लिश दूसरे उर्दू की टर्मनोलॉजी भी इस्तेमाल करता रहा। ठीक है, नाइफ एंड नीडल। सूई जिहड़ी है वो भी तिखी है और छुरी जिहड़ी है वो भी तिखी है। हुण छुरी कहती है मैं बड़ी चीज़ हाँ तो सूई कहती है मैं बड़ी चीज़ हाँ। लो जी कहते अच्छा दस तू किवें चीज़ है? छुरी कहती लै देख मैं जिथे भी चल जा मैं वढ़ देनी कट देनी है, जुदा कर देनी। सूई कहती बड़ी गल है, ठीक है तू चुभनी है लेकिन तू जुदा कर देनी है, तोड़ देनी है, वंड पा देनी है, अपनिया तू जुदा कर देनी। लेकिन मैं भी चुभनी जरूर हाँ, तिखियां गल्लां मेरियां भी होंदियां ने, लेकिन मैं जदों भी चुभनी है मैं विछड़ियां नूं जोड़ देनी है, जुदा नूं कट्ठा कर देनी। जदों ऑपरेशन हुंदा टांके लगदे पता ना जिसम खुलिया होवे ते किवें ओनूं टांके ला के सी कि चुभनी मैं भी हाँ, लेकिन मैं मेरियां गल्लां तिखियां नहीं लेकिन जोड़न वास्ते कट्ठ करन वास्ते। इस वास्ते असीं भी अपने लफ्ज़ां ते गौर खोस करिए कि साडे लफ्ज़ जुदा कर देने या कट्ठा कर दें। अल्फाज जहाँ जान देते हैं वहाँ जान निकाल भी लेते हैं। अल्फाज कायल भी करते हैं, अल्फाज माइल भी करते हैं और अल्फाज घायल भी करते हैं। गल पले पई या नहीं? अल्फाज जिहड़े ने साडे लफ्ज़ जिहड़े ने एक कायल भी करते हैं माइल भी करते हैं। तुसी अच्छे अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे लोग कायल हो जाएंगे, तो जी बहुते खट्टे मिठे करोगे या तलख तो वो जुदा भी कर देंगे। इस वास्ते अपने अल्फाजां दा पाक ते सलीस सानू की दसदे। देखो यसू टुट के भी सब नूं इकट्ठा कर लेंदा, तो कि असी छोटिया छोटिया कुर्बानियां दे के कार च मुहब्बत ते कट्ठ नूं नहीं लैके आ सकते। पाक ते सलीस अज सानू की सिखांदे? मैं पहले भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया ट्रिनिटेरियन मॉडल ऑफ लव एंड यूनिटी है। पाक ते सलीस एक मॉडल है मुहब्बत ते कट्ठ दा कि जिवें वो कट्ठे काम करते हैं असी भी खानदाना च कट्ठी बरकत पाई। इस वास्ते देखो अगर बाप है ना खानदान च तो वो माँ बाप की कोशिश है कि बच्चे भी कट्ठे रहें। लेकिन अजकल के दौर च हर कोई अपनी जिंदगी आप ही गुजारता पिया, एक दूसरे की परवाह नहीं। लेकिन अज की ये ईद सानू कट्ठा होने की बरकत देंदे। सो इस वास्ते आओ खुदा का शुक्र अदा करें। और आखिर ते एक छोटी जी मिसाल दे नाल अज दे कलाम नूं कनक्लूड करांगा। मुकद्दस अगस्टियन है, साढ़े चो भी कई लोग ना पाक कलाम नूं बड़ा पढ़ते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं कि मैं जुबानी रटा लावां, मैं करा मैं हिफ्स कर ला, तो बड़िया चीज़ां असी करना चाहते, दुआवां बड़ियां करी दे, लेकिन फिर भी किते ना किते कमी महसूस करती नहीं यार जिस तरह चाहते हो जो हो नहीं सकता। मुकद्दस अगस्टियन भी ना पता उनकी बड़ी ख्वाहिश है, चर्च का डॉक्टर है और बहुत बड़ा आलम। उनकी कोशिश है कि मैं खुदा की सारी हिकमत ते सारे कलाम और खास तौर पर पाक ते सलीस के बेट नूं अपने ज़हन ते अपने दिल च कैद कर ला। लेकिन नहीं कर सकता। जदों भी पाक कलाम पढ़ता है, जदों भी पाक तसलीस के बारे सुनता है, कोई नवी गल कोई होर गल कोई नवा ही खुदा दा है बरकत इंकशाफ ते फजल हो जाता है। बड़ा ही हैरान होंदा है, कहता मैं सोचना है कि मैं सब कुछ ही सीख गया, लेकिन हर बारी पाक तसलीस की कोई नवी बरकत लभ जाती, कोई नवा यानी कि इंकशाफ हो जाता है। एक दिन की होंदा है, एक दिन सुबह सवेरे साहले समंदर ते ना सैर करन जांदा है और सैर करद्या दूर एक बच्चे नूं देखदा है, आ जिवें ए बैठा होया है, ठीक है। हुण वो बच्चा की करदा है, एक टोया करके ते समंदर वाल भजा जाता है, किनारे मुठा भर के उस टोए दे विच उस खड्डे च पानी पाना शुरू कर देंदा। वो देखता रहिंदा बच्चा करदा कि वो समंदर का पानी टोए च पांदा है, वो मिट्टी जज़ब वो रेत जज़ब कर जाती, फिर जाता फिर पांदा, अक के पुछ ही लैंदा है, कहता बेटा आप ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता अंकल
ये जो सारा समंदर का पानी है ना, वो मैं वहाँ से इकट्ठा करके ना इस अपने ना इस टोए या गड़े में इसमें ना कैद करना चाह रहा हूँ। वो बंदा कहता है यार जिमें ये बच्चा नादान है, शायद मैं भी तो इनकी तरह अदनान नहीं, इनकी तरह भोला तो नहीं, इनकी तरह इनोसेंट तो नहीं कि जिमें ये बच्चा जिहड़ा है समंदर नूं इस टोए दे विच कैद नहीं कर सकता, तो मैं खुदा दी खुदाई नूं, खुदा दी हिकमत नूं, खुदा दे पाक तसलीस दे गहरे भेद नूं अपनी एक छोटी एक खोपड़ी च किवें कैद कर सकां। फिर उन्होंने पल्ले पैंदा समझ आती नहीं, मैं शुक्रगुजार होवां कि खुदा ने बाप के बारे, बेटे के बारे, रूल कुदस के बारे जिन्ना मैनू हिकमत दनाई, कुवत, इलम, ताकत दिता है, मैं शुक्रगुजारी करा और बाप की परस्तिश, बेटे की परस्तिश और पाक रूह की परस्तिश करा और उन्हां दी मामूर होके उन्हां कोलों बरकत हासिल करा। सो इस तरह मसीह च मेरे जीजो सानू भी हमेशा शुक्रगुजार रहना। अज मैं इस वास्ते कहा सी टॉपिक एडा आसान नहीं, ना समझना तो ना समझाना, लेकिन फिर भी मैं तुहानू सादा अंदाज च दसिया है कि आओ सोने रब का शुक्र अदा करें। जिमें वो मुहब्बत ते कट्ठ नूं फरोग देंदे ने और उहदे च मिल के काम करते हैं, असी भी खुदा की बादशाही नूं अगे लैके चले, सारे मिल जुल के खानदानी मुहब्बत और कलीसियाई मुहब्बत च परवान चढ़िए और फिर कट्ठ नूं फरोग दईए, यूनिटी नूं फरोग दईए, ताकि एक ही चरवाहा और एक ही गला होवे। मसीह खुदाबंद दे वसीले नाल आमीन।